آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 26 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیکن یہ اطمینان تو ایک طفل تسلی تھی۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ طوفان ابھی گزرا نہیں ہے۔ منافقت اور مکروہ فریب نے سچائی کا گلا گھونٹ دیا تھا، روشنی کو اندھیروں کے ازدہے نے ڈس لیا تھا۔ اگلے روز میں شہر امتحان دینے چلا گیا۔ میرے دل میں آیا کہ بابا تیلے شاہ سے مل آؤں، لیکن میں نے ارادہ بدل دیا کیونکہ اب حویلی کے حالات تبدیل ہو گئے تھے۔ میں شام کے قریب حویلی پہنچا تو اس کا جہازی دروازہ خلاف توقع کھلا ہوا تھا۔ ہر طرف ویرانی اور وحشت کا راج تھا۔ میں اندر گیا تو ملک صاحب، چاچی اور نصیر نڈھال سے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی دھائی دینے لگے۔ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے شاید پتر۔ میں پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ ملک صاحب نے سوجی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ لے گیا ہے زلیخا۔ کون لے گیا ہے؟ ریاض شاہ اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ وہ سر جھکا کر رونے لگے۔ میری ٹانگوں سے جیسے کسی نے جان نکال لی تھی۔ میں نیچے بیٹھ گیا۔ کب؟ کیسے؟ وہ تو… میں ہکلا کر رہ گیا۔ بیٹے یہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا۔ انہوں نے ہمیں پھر دھوکہ دیا ہے۔ چاچی چلانے لگی۔ رات کو رام رام کہہ رہے تھے۔ ہم ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے۔ بابا جی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کسی سے زیادتی نہیں کرے گا، لیکن آج وہ بابا جی کے کہنے پر اسے لے گیا ہے۔ ہم تو برباد ہو گئے پتر جی، ہم برباد ہو گئے۔ وہ اپنا سر پیٹنے لگی۔ میں اس بے غیرت کو قتل کر دوں گا، خدا کی قسم ایک بار مجھے اس کا پتہ مل جائے۔ نصیر کی حالت پہ بگڑی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے بول رہا تھا۔ بابا جی نے کہا تھا کہ زلیخا ہماری امانت ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے اپنی بہو بنا کر لے جائیں۔ چاچی کہہ رہی تھی، اسے کہیں سے ڈھونڈ لاؤ پتر جی، ہم تو بہت کوشش کر چکے ہیں۔ میں کہاں سے تلاش کروں انہیں؟ میں سوچنے لگا۔ بابا جی آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ مجھے کس امتحان میں مبتلا کر گئے ہیں۔ ان کی رات کو کی ہوئی ساری باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگیں۔ میرے لبوں پر اب ایک ہی سوال بار بار آ رہا تھا، بابا جی وہ سب کیا تھا؟ کیا آپ پہ جھوٹ اور مکاری اور ہوا سے غلام تھے؟ ایک اسلام پرست جن ایسی گھنونی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا آپ ریاض شاہ کے ہاتھوں اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکے؟ مگر کوئی میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے ڈھال سے بدن کے ساتھ اٹھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے موٹر سائیکل نکالی اور قبرستان کی طرف چلا گیا۔ موٹر سائیکل قبرستان کے پاس روکی اور بھاگ کر اس قبرستان کے پاس چلا گیا جہاں ٹاہلی والی سرکار رونق افروز ہوتی تھی۔ ان کے والد گرامی کی قبر پر وہی بوسیدہ سی بوری کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ وہ پیالہ بھی وہیں رکھا ہوا تھا جس میں خون ٹپکا کر کالی داس کو پکڑا تھا۔ ٹاہلی والی سرکار وہاں موجود نہیں تھی۔ انہیں ارد گرد تلاش کرنے لگا، پھر اونچی اونچی آواز میں انہیں پکارنے لگا۔ آواز سن کر درختوں پر پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے، مگر ٹاہلی والی سرکار کی موجودگی کے آثار نہیں ملے۔ میں نیم دل برداشتہ ہو کر واپس ہونے لگا تو مجھے بہت قریب کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور قبرستان سے نکلنے لگا تھا کہ کتا دردناک آوازیں بھونکنے لگا۔ اس کے فوراً بعد کسی عورت کی ہذیانی چیخیں سنائی دینے لگی۔ میں نے آواز کی سمت کا اندازہ لگایا۔ آواز شیشم کے ایک بوڑھے درخت کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں ادھر پہنچا تو یہ دیکھ کر لرز کر رہ گیا۔ ایک عورت کا درخت کی کھو میں سر پھنسا ہوا تھا اور اس کا پورا بدن باہر لٹکا ہوا تھا، بازو کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ چیخیں اس عورت کی تھیں۔ کون ہو تم؟ میں اس کے قریب پہنچا تو درخت کی کھو سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں گھبرا گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر عورت کے بازوؤں کی رسیاں کھول دیں اور اس کا سر کھو کے شکنجے سے بمشکل نکالا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں دہشت زدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح دہک رہی تھیں، زبان کتے کی طرح باہر لٹکی ہوئی تھی اور ابرو کماں کی طرح تنے ہوئے تھے۔ وہ سانسیں یوں لے رہی تھی جیسے کتا ہامتا ہے۔ اس کی عمر 40 برس ہوگی، رنگت سانولی اور چہرے پر خشکی نمایاں تھی۔ ہاتھوں کے ناخن گندے اور بڑے ہوئے تھے، کپڑے قدرے صاف ستھرے تھے۔ کون ہو تم؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ تم نے میری مدد کی ہے، بولو میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس کے چہرے سے اب تناؤ کم ہو رہا تھا۔ مجھے اس سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے قبل کہ میں کچھ بولتا، ٹاہلی والی سرکار کی آواز فضاؤں کا سینہ چیرتے ہوئے میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس خرافہ جادوگرنی کو آزاد کر دیا ہے تو نے۔
गजब कर दिया। इससे पहले कि मैं सूरत-ए-हाल को समझता, वो औरत किसी उकाब की तरह उड़ती हुई मेरे पास आई और अपने हाथों में मेरी गर्दन को दबोच लिया। खबरदार, अब जो मुझे हाथ लगाया वरना मैं इसे मार डालूंगी, वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई। उसकी आवाज सुनते ही टहली वाली सरकार शीशम की खो से बाहर निकलने लगे। मैं हैरान और परेशान था और इस नाकाबिले बयां मंजर को देखने लगा। वो खो जिसमें उस औरत का सर फंसा हुआ था, इससे टहली वाली सरकार अपने पूरे वजूद और जाहो जलाल के साथ बाहर आ रहे थे। मैं इसे क्या लिखूं? पागलपन, वहम, खलेजान, जहालत। लेकिन मेरे सामने कफस के पर्दों में तह जमाकर एक वजूद खो से नमूदार हो रहा था। मैं इस हकीकत को जुटला नहीं सकता था। मेरे दीदे फट चुके थे और पलकों के गिलाफ को फाड़कर निकल जाना चाहते थे। वो खराफा थी, चुड़ैल थी या कोई जादूगरनी। इसके नुकीले और जहरीले नाखून मेरी गर्दन में धंसे हुए थे। मेरी शाहरा पर इसका इस्तख्वानी हाथ जमा हुआ था। नथनों से उठती हुई गहरी गर्म सांसें किसी नीम मुर्दा इंसान की तरह निकल रही थीं। पेशानी की रगें कानों की लू तक तन गई थीं, मगर इस अजाब कुनी और जान कुनी से बेपरवाह होकर उस हैरान कुन मंजर को देख रहा था, जिसकी लताफत ने मुझे हर उस दर्द से बेगाना कर दिया था जो मेरे रगो रेशा में समा कर बेकार हो गया था। ठहरो ए बदबख्त चुड़ैल, इसे आज भी न आने पाए। खुदा की कसम, जिसके कब्जा कुदरत में इस मरील इंसान की जान है, जो इसकी मताए कुल का मालिक है। ए बदजात चुड़ैल, ठहर जा। अफसोस कि मैं तुझे एक औरत नहीं कह सकता। तूने एक नर्मो लतीफ वजूद जन में अपनी शैतानी जबलत का डेरा डाल रखा है, बस मैं तुझे चुड़ैल ही कहूंगा। मेरी बात सुन ले, अगर तू जिंदा रहने की तमन्ना रखती है तो इसकी शारक से शैतानी उंगलियां हटा ले, वरना तेरे बदन के एक एक रेशे में मौत का बारूद भर दूंगा। शीशम की कोह से निकलने वाले एक वजूद ने इसे तंबीह की। मैं कुदरत की इस करामत की एक झलक से मखमूर हो चुका था। मेरी पलकों पर सिर्फ एक ही चेहरा महवे ख्वाब था, टहली वाली सरकार। उनकी आवाज मेरी समातों से मुसलसल टकरा रही थी, और वो जिसे मैंने कुछ लम्हा पहले इस कोह के अजाब से निकाला था, इस भौंकती औरत ने मुझे मौत के शिकंजों में जकड़ दिया था। बाबा मुझसे पक्का वादा कर, कुछ नहीं कहेगा तो मैं चली जाऊंगी। मैं इसे कुछ नहीं कहूंगी, इसने तो मेरा भौंकना बंद कराया। मैं इसे नहीं मारना चाहती, लेकिन तूने कुछ कहा तो मैं इसे मार डालूंगी। मैं तो मरूंगी, ये भी नहीं बचेगा। ठहरो ठहरो, टहली वाली सरकार का गजब के जोले से जलाली चेहरा नमूदार हो रहा था। ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना तू इसे कुछ कहेगी। मैंने इसे तमन्नाओं की पोशाक में छुपा कर रखा है, तो मेरी पोशाक को कैसे फाड़ सकती है? तू इल्म की सदाकतों और इसकी पनाहियों से गाफिल है। तू क्या समझती है शैतानी इल्म तुझे अल्लाह की मार से बचा लेगा? ये इल्म मेरा मुहाफिज है और इसका भी मुहाफिज है। तू इसे मार नहीं सकेगी। टहली वाली सरकार उस जगह जमकर खड़े हो गए और फिर उन्होंने दाएं हाथ की उंगली आसमान की तरफ उठाई और ज़ेरे लब कुछ पढ़कर उस उंगली को झटक दिया। एक लम्हे के न जाने किस सानिये में यह हुआ था। एक बरक सी गुमदती महसूस हुई थी। कोई तेज शय मेरी गर्दन में चुभी थी और साथ ही इस खराफा औरत की दिल दोस्त चीख उभरी। सरकार, मेरे हलकूम से आह निकली और मैं गर्दन पर हाथ रखकर नीचे बैठ गया। मेरे बच्चे, तुझे कुछ नहीं होगा। टहली वाली सरकार ने मेरे सर पर अपना मेहरबान हाथ रखा। मेरी गर्दन से टीसें उठ रही थीं। उस जगह से बूंद बराबर लहू निकला था। टहली वाली सरकार ने मेरा हाथ गर्दन से हटाया और ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगे। फिर अपना लोहावे दहान उंगली पर लगाकर टीस वाली जगह पर लगाया तो एक तेज मगर कैफ आवर ठंडक सी लहर मेरे रेशे रेशे में रेंग गई। कुछ लम्हे बाद दर्द काफूर हो गया। मेरे बच्चे, उस खराफा ने तेरे अंदर अपना जहर उतार दिया था, लेकिन शाफी मुतलक के फजल से अब इसका ये सहरी जहर तुझ पर असर नहीं करेगा। वो मेरे सर पर हाथ रखकर पूछने लगे, जो मुबारक कलमात तुझे सिखाए थे इसे पढ़ते हो ना? उनकी आंखों में एक मखसूस किस्म का मुसरत अमेज इस्तफसार था। मैंने असबात में सर हिलाया। अगर तू चाहे तो अपनी रूह की बैटरी को चार्ज कर सकता है। मैंने गौर से उनकी नजरों में देखा। ये मुबारक कलमात पढ़ते रहा करो। मेरा रब है ना जो इधर तेरी शारक के करीब रहता है। अगर तू अपने कलब के मेहराब में सर बजूद होकर जिक्र इलाही करते रहोगे तो रब करीम तेरी दुआओं को सुनने लगेगा। लेकिन मेरे बच्चे, ये सब तुम्हें पाकीज़ा दामनी से नसीब होगा।
तेरी पाकीज़ा रूह तेरे बदन को मुअत्तर देखना चाहती है। मेरे बच्चे, जिस घर के मकीन खुश ज़ौक़ हों उसके वरोबाम भी साफ सुथरे होते हैं। इस गोश पोश की इमारत को आलूदगी से बचाए रखोगे तो रूहानी बालिदगी हासिल कर जाओगे। जब टाहली वाली सरकार फलसफा रूहानियत पर बोल रहे थे तो इस खराफा औरत की कराह सुनाई दी थी। मैं जानता हूँ तू अभी जिंदा है। टाहली वाली सरकार के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। तू जानता है ये कौन है? मैंने नफी में सर हिलाया। ये उन कमजाद और मुरीद औरतों में से है जो नाम की मुसलमान हैं मगर शैतान की आलयकार बनकर अपनी इज्जत और आबरू और ईमान बेच देती हैं और अपनी गलाजतों को कूचे कूचे में ले जाकर बिखेरती हैं। मैं समझा नहीं सरकार, मैंने लाइल्मी का इजहार किया। वो कालिदास का चेला याद है? जब उसकी हाजिरी लगाई थी तो उसने बताया था कि उधर तुम्हारे शहर में कुछ मुसलमान औरतें एक हिंदू पंडित के पास जाती हैं और इससे शैतानी इल्म सीखती हैं। ये खराफा इनमें से एक है। देखो तो इसकी शक्ल, लगता है ये इंसानों की नस्ल में से है। मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा तो घबरा कर पीछे हट गया। वो अकड़ कर बैठी थी। उसकी हालत किसी बावले कुत्ते जैसी थी। इसका बातन जाहिर हो रहा है। मेरे बच्चे, टाहली वाली सरकार ने नफरत से उस पर थूक दिया तो लुआब जो ही उसके सर पर गिरा, इसके बालों में आग लग गई। वो बावले कुत्ते की तरह इधर उधर सर मारने लगी। वो अपने तौर पर चीख रही थी मगर इसके हलक से कुत्ते जैसी आवाज निकल रही थी। यूं लगता था जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने इसके सर के सिवा पूरे बदन को जकड़ लिया है। ये शैतानी इल्म है। इसने जो गंद खाकर और खिलाकर ये इल्म सीखा है अब वो निकल रहा है। तुमने सुना है कुत्ते को घी कभी हजम नहीं होता, सो ये घी खाने आई थी मगर अब इसे निगला नहीं जा रहा। ये यहाँ इधर मेरे वालिद गिरामी की कब्र पर आकर शैतानी अमल करने आई थी। बदबख्त को इसके जले नसीब यहाँ खींच लाए। इसका वक्त पूरा हो गया होगा तभी तो यहाँ आ गई। मैंने सुन रखा था कि मेरे शहर सियालकोट में बाद पेशावर काला जादू करने वालों ने ऐसी औरतें पाल रखी थी जो इनके लिए काम करती थी। मक्खन सिंह के बारे में भी यही मशहूर था। इसके नशीब पैरोकार गली कूचों में जाकर इसके शोबदों को करामात बयान करके डराते थे मगर ये औरत एक दूसरे कबीले से ताल्लुक रखती थी। मुझे सिर्फ इतना ही मालूम था कि बहुत सी ओहाम परस्त औरतें ताबीज धागे और बाकायदा काला जादू सीखने के लिए एक हिंदू पंडित के पास जाती थी। टाहली वाली सरकार ने इस औरत को उसकी शैतानी कुव्वतों समेत बेबस करके रख दिया था और अब वो अपनी बेबसी पर चिल्ला रही थी। मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। सरकार ये भौंक क्यों रही है? मैंने इसके कराहत अमेज चेहरे से नजरें हटाते हुए सवाल किया। भौंकना तो इसका काम है, भौंकते भौंकते मर जाएगी ये। टाहली वाली सरकार ने नफरत से मुंह मोड़ लिया और मेरा हाथ पकड़कर अपनी चिल्ला गाह की तरफ जाते हुए गोया हुए। मेरे बच्चे, जो मुसलमान औरत या मर्द काला जादू सीखता है और फिर इस गंदगी में पूरे का पूरा दाखिल हो जाता है, अपने आखिरी अयाम में बावला हो जाता है, कुत्तों की तरह भौंकने लगता है, पानी में अपनी शक्ल देखता है तो इसे अपने अंदर जानवर नजर आने लगते हैं, इसकी रूह मुर्दा हो जाती है। बल्कि ये कहूँगा कि शैतान लाइन इसके अंदर डेरा डाल लेता है। इस औरत की अकल पर अब शैतान सवार है। तुम जानते ही हो शैतान और जिन्नात को कुत्तों के रूप में मुतशक्ल होने की भी कुदरत हासिल होती है, इसलिए तो ये आम कुत्ते भी इनको पहचान लेते हैं। इस औरत को अब बावले कुत्ते की तरह तड़प तड़प कर मर जाना है। ये है कौन? ये जानते हुए भी कि मैं किस माहौल में सांस ले रहा हूँ, मेरे अंदर के सहाफी का तजस्सुस अंगड़ाइयां लेने लगा। तुम्हें बताया तो है ये कौन है, कहाँ से आई है, इसको छोड़ो। सिर्फ ये जान लो कि ये खराफा और बदजात अपने असल को पहुंच रही है। सरकार, मैं दबे लफ्जों में बोला, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसके बारे में जानकारी करूं कि ये कौन थी और पंडित तक कैसे पहुंची। मैं दरअसल जानता हूं कि तुम्हें कौन सी शय तंग कर रही है। टाहली वाली सरकार के लबों पर मुस्कान उभरी। मैंने हैरत से मिले जुले तासुरात के साथ दरियाफ्त किया। टाहली वाली सरकार ने पहले मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वही मसरत आमेज मुस्कुराहट थी जो न जाने किस खुशी या इत्मीनान को जाहिर करती थी। फिर उन्होंने सर आसमान की तरफ उठाया और नारा मस्ताना बुलंद करने लगे। हक अल्लाह, हक अल्लाह, वो जात खालिक दो जहां अगर चाहे तो अपने लुत्फ़ो करम से इस गुनाहगार को ये तौफीक दे सकती है। मेरे बच्चे, मगर बहुत से हिजाबात माने हैं। हम कुछ नहीं कहना चाहते कि हम क्या जानते हैं। कितने जहानों के इसरार होवीदा हैं हम पर। तुम ऐसा करो कि इस खराफत से खुद पूछ लो। वो अपनी मौत मर रही है।
काले जादू का नासूर इसके पूरे जिस्म में फैल चुका है। सरकार, मेरे ज़हन में जमाके होने लगे और मैं इनका चेहरा तकने लगा। क्या हुआ है? वो रियाज शाह सरकार, वो भी तो काला जादू करते थे। मैं अटक अटक कर बोलने लगा। मुझे यकीन था कि तुम ये बात करोगे। हाँ, वो भी करता था, लेकिन उसने तौबा कर ली थी। अगरचे मुझे ये यकीन है कि वो मुकम्मल तौर पर ताइब नहीं हुआ था, लेकिन उसने मेरे सामने तौबा की थी। और ये जो तौबा है ना, ये अल्लाह और बंदे के माबैन एक मुआहिदा है। हम इसके दरमियान नहीं आ सकते। अगर मैं उसकी तौबा को मुनाफिकत कहता तो मेरी सरकार सरदारुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाते। दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। अगरचे हम इंसान अपनी दूर अंदेशी से किसी इंसान के हालात समझ लेते हैं, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल के मामलात में इस दूर अंदेशी का तकाजा होता है कि हम इस खालिक दो जहां की हिकमत और असरार पर बहस और हिजत ना करें और इसके दरमियान तौबा के मुआहिदे पर खामोश हो जाएं। मेरे बच्चे, मैंने कहा था कि बहुत से हिजाबात माने हैं, हम बेलाग नहीं बोल सकते। इशारों कनाइयों में कुछ क्या गुजरते हैं। जो समझ ले इनका भला और जो ना समझे इनका भी भला। हर पेट का अपना अपना हजम होता है मेरे बच्चे। मैं जानता था तू रियाज शाह के बारे में दरियाफ्त करेगा। सरकार, वो जुलेखा को ले गया है। ले गया है? टाली वाली सरकार ने ठंडे लहजे में कहा। वो उसकी अमानत थी, सो वो ले गया। नहीं सरकार, वो इसे निकाल कर ले गया है। उसने इसे मजबूर किया होगा। उसने निकाह नहीं किया जुलेखा से। मैं तड़प उठा। मेरे अंदर हद से बढ़ती बेबसी बीचों ताब खाने लगी थी। और फिर मैंने गुज़श्ता रोज के वाक़यात टाली वाली सरकार को बयान कर दिए कि किस तरह उसने नसीर को बेबस करके अपने बाप के कत्ल पर उकसाया था। मेरा ख्याल था कि टाली वाली सरकार ये सुनते ही गजबनाक हो जाएंगे और वो किसी तौर पर ये पसंद नहीं करेंगे कि रियाज शाह अपने पुरस्रार ताकतों को अपने नफ्स की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करता फिरे। मगर वो यक हवाओं की तरह सर्द थे। करबो पेशानी या कहरो जलाल की एक परछाई भी उनके चेहरे पर नजर नहीं आई थी। या इलाही, ये तेरे कैसे भेद हैं? ये तेरे नेकोकार बंदे भी नेकी और बदी में तमीज नहीं कर सकते। और क्या ये किसी बदकार को रोक नहीं सकते? इधर ये खराफा चुड़ैल भोंकती औरत तो इनके गजब से हलाकत तक पहुंच रही है, मगर जब मामला रियाज शाह की शैतानियत का आता है तो ये खामोश हो जाते हैं। मेरे मौला, ये सब क्या है? ये कौन से भेद और कौन सी हिकमत है? ये कैसी मसलियत है जो किसी मासूम लड़की को बेआबरू होते देखना चाहती है? ये कैसा इंसाफ है कि माँ बाप और एक भाई लाचारगी से शैतान सिफ्त को इनकी इज्जत के साथ खेलते हुए खामोश है। मेरे अंदर कोई चीख चीख कर अपने रब्बे करीम से सवालात कर रहा था, इल्तिजाएं पेश कर रहा था। मुझे याद है जब शारक से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा करीब मेरे अल्लाह करीम ने मेरे सिसकते हुए सवालात सुने, तो उधर इस लम्हे करबो नादीदा की चोटदार लहर टाली वाली सरकार के चेहरे पर नजर आई और वो एक फलक शगाफ करबो इब्तिला में डूबी चीख मारकर बेहोश हो गए थे। मेरे अंदर सवालात का तलातुम थम गया और टाली वाली सरकार की तरफ देखने लगा। उनकी पलकों में चंद आंसू दबे हुए थे और सांसें तेज से तेज हो रही थीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं इन्हें होश में कैसे लाऊं। मेरा दिल अपने दुखों और फिर टाली वाली सरकार की हालत गैर देखकर रोने लगा था। सरकार उठे, आप तो सो गए सरकार। मैं उनके सर को अपनी गोद में रखकर उस माँ की तरह सहलाने लगा जो भूख से निढाल होकर अपने रोते पीटते बच्चे को नींद में दिलासों से थपकियां देती है। यूं ही जब खासी देर हो गई तो टाली वाली सरकार के लबों के ताले खुलने लगे। हक अल्लाह, हक अल्लाह, वो ज़ेरे लब रब्बे जुलजला को पुकार रहे थे। इसी असना में मुझे महसूस हुआ कि हमसे कुछ दूर बैठी भौंकती औरत खामोश हो चुकी है। मैंने सोचा कि वो मर गई होगी, इसीलिए उसकी आवाज दम तोड़ गई है। मैं पूरे इन्हमाक से टाली वाली सरकार की तरफ मतवज्जा था। जब उन्होंने बोलना शुरू किया और फिर उनके लबों से जिक्र इलाही के कलमात अदा होने लगे तो मुझे करार आ गया। मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे अब पूरा यकीन था कि टाली वाली सरकार के कल्बो नजर पर जो भी हजाबात माने थे, इन्हें मेरी इल्तिजाओं ने पाँच पाँच कर दिया था और मेरे रब जुल जलाल ने इन्हें आगाही बख्श दी थी। तूने क्या कर दिया है? टाली वाली सरकार जाग उठे और फिर मेरे सामने बैठ गए। मेरे बच्चे, तूने मेरे मौला को मुझसे नाराज कर दिया है। उनकी पलकों पर ठहरे आंसू अब सावन भादों की तरह बरसने लगे थे। तूने मेरी उम्र भर की कमाई लुटा दी। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। ना जाने तूने क्या किया है कि मुझ पर कोड़े बरसने लगे।
मैंने इन्हें बता दिया कि मैं अपने रब करीम से क्या कह रहा था। सरकार, हम जैसे इंसान तो बेबस होते हैं, वो ये जानते हुए भी कि अल्लाह उनकी शारक से भी ज्यादा करीब है। वो समझते हैं कि आप जैसे लोग उस ज़ाते आला और बरतर के वली हैं। वो उनके मनाजात हाजात को बेहतर तरीके से तलब करने का सलीका सिखा देंगे, इन्हें अंधेरों से उजालों की तरफ ले आएंगे, उनकी आशाओं और महरूमियों के दिल दर्द दूर कर देंगे। आप लोग अल्लाह के वली जो ठहरे, उसके करूब की नगरी में जो बसते रहते हैं, आपको हम जैसे इंसानों से ज्यादा सलीका आता है मांगने का। आप अपने काम के माहिर हैं, मगर सरकार, जब ये भरम टूटता है जैसे कि मेरा टूटा, मेरे जैसे इंसान इतने भी अंधे नहीं होते कि अच्छाई और बुराई को ना समझ सकते हों, मगर इख्तियार और कामलियत से तही होते हैं। हम तो शऊर की दुनिया में रहते हुए भी लाशऊर के वजूद से गाफिल नहीं होते। इसीलिए तो सरकार हमारे अंदर तजस्सुस, इस्तफसार और इजहार के अलाव भड़कते हैं। कभी आपको अच्छे लगते हैं, कभी बुरे। सरकार, यही अलाव मुझे जला रहा है। मेरी बात अभी जारी थी कि टाली वाली सरकार के चेहरे पर नागवारी उभर आई। दफा हो जाओ। मैं उनकी तबीयत के इस मेलान पे हैरान रह गया। इसी असना में मुझे अपने अकब में कुत्ते के भौंकने की आवाज आई तो मैंने पलट कर देखा। वही औरत अपनी बदीती के सारे लवाजमात के साथ खुद को घसीटती हुई हमारी तरफ आ रही थी। उसकी जुबान कुत्ते की तरह बाहर लटक रही थी और स्याह रंग का लुआब उसके मुंह से नीचे टपक रहा था। तू फिर आ गई बाबा, उसकी लरजती हुई आवाज सुनाई दी। मुझे माफ कर दे, मैं अपने गुनाहों को झील रही हूँ। मैं सच्ची तौबा करना चाहती हूँ, मुझे एक मौका ले दे बाबा। वो हाँफती कांपती हुई करीब से करीब हो रही थी। वो सांस लेती तो ऐसे लगता जैसे कुत्ता हाँफता है। टहली वाली सरकार के चेहरे पर से तनाव काफूर होने लगा। तौबा, ऐ मेरे मौला, एक शैतान तुझसे तौबा तलब कर रहा है। मेरे मौला, ये तेरे इख्तियार में है, जिसे तू चाहे माफ कर दे। टहली वाली सरकार ज़ेरे लब कहने लगी, मैं कौन होता हूँ तेरे और तेरे बंदों के बीच में आने वाला। तू चाहे तो इसकी तौबा कबूल कर ले, आखिर तेरी ही बंदी है। टहली वाली सरकार ने उसकी तरफ अब की बार देखा तो उनकी आंखों में एक बार फिर मुस्कान अपने दिए जलाने लगी थी। तू उधर ही ठहर जा, मैं तुझे अपनी बंदिशों से आजाद करता हूँ। और उधर जा, उधर जो नलका है ना, वहां जाकर अपनी गलाजतों को धो और पाकीज़गी इख्तियार कर, वुजू कायम कर और अपने अल्लाह के हजूर सजदे में गिरकर रोती जा। अपनी अखियों के सारे आंसू उसके दर की चौखट पर गिरा दे। वो जात अपने बंदे के आंसुओं से उसकी खताओं के दाग धो देती है। ये कहते हुए टहली वाली सरकार की आवाज मध्यम हो गई और फिर उन्होंने कुछ पढ़कर उस औरत की तरफ हाथ झटका तो उसके बदन की गिर्द कायम गिरफ्तें ढीली पड़ गईं।